Hello students, so today's chapter is heat. I took from this chapter from NCRT book from class 7 chapter number 4. So in your home many times you touch the objects and you feel this object is hot and this object is cold. How? With the help of your sense of touch. But in every time you can't say the exact hotness or exact coldness of the body of the object. So there is a word we use for to measure the reliable measure hotness of the object is called temperature. Okay, so जो reliable measurement होता है hotness या coldness of any object that is temperature, मतलब भरोसेमंद measurement है जो जिसको हम बोलते हैं temperature. A temperature is a reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Understood? The next point is temperature is measured by a device called thermometer. जो टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है कौन सी डिवाइस से मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से. सो मेजरिंग टेम्परेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, a clinical thermometer and a laboratory thermometer. In clinical thermometer, the clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So you must remember this point. The clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. And in this chapter, the important thing is the normal temperature of human body. In your exam, maybe they ask what is the normal temperature of human body. So the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. In many cases, the other scale with the range 94 degree Fahrenheit to 10 degree Fahrenheit scale is used, but in earlier cases, earlier time, but now the clinical thermometer read temperature in degree Celsius. Okay, so the temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. अगर बुखार भी होगा तो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे नहीं जाएगा. नॉर्मल टेम्परेचर मस्ट बी 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर. सो द लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रीडिंग पॉइंट है वो कितनी होती है? 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ हीट. So in this point we discuss about how the heat transfer. First we discuss if we check any object on the gas, and firstly we see the object is hot. Okay, but after some time if we close the gas, okay, off the gas, the object is slowly the cool down. How? Because the heat of the object transfers in the surrounding. जो उसकी hotness है, जो अभी तक गर्म था ऑब्जेक्ट गैस के ऊपर होने से जल, तो अब वो ठंडा होते जाता है. कैसे? क्योंकि अब उसको हीट देनी बंद करती है और जो उसके पास हॉट हीट थी, गरम उसके पास गर्मी थी, वो अपने सराउंडिंग्स में क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है. सो एवरी ऑब्जेक्ट इन एवरी सिचुएशन द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर. सो देयर आर सम points like conduction, convection, conductor, insulators. They, in this point we discuss about how the heat transfer. Okay, so if in the conduction, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. जो कंडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होता है? जो हीट होती है आपका पहले एंड पे, जो हीट जैसे आप आयरन की किसी आयरन की कील को अगर आप गर्म करते हो तो उसके जो टिप है वो पहले गर्म होगा, देन धीरे धीरे उसमें क्या होगा? वो पूरी कील अगर आप उसको गैस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर गर्म कर रहे हो तो उसकी टिप पहले गर्म होगी, देन धीरे धीरे वो पूरी कील क्या होती है? गर्म होती है. तो दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. बिकॉज उसमें क्या होता है? पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? आपका हीट हॉट हो रहा है, देन वो जहाँ को उसका कोल्डर पॉइंट है पीछे पीछे को क्या हो रही है?
हीट ट्रांसफ़र होती है, यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडक्शन. अंडरस्टूड? And the next point is convection. In convection, we take the example of water. If we heat the water, you check when the water is heat, the water molecules जो नियर होते हैं गैस के फ्लेम के, तो वो क्या करते हैं, पहले वो गर्म होते हैं जो नीचे गैस फ्लेम के नज़दीक में होते हैं. देन द वाटर मॉलिक्यूल्स जो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, बबल्स के रूप में ऊपर ऊपर को आते हैं. और जो ठंडी जो कोल्ड वाटर है वो क्या करता है, वो नीचे को जाके फिर वो गर्म होता है. और ये प्रोसेस चलते रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए. अंडरस्टूड? सो व्हेन वाटर इज़ हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट and hot water rises up. The cold water from the side moves down towards the source of hot and water from the sides moves down. This mode of heat transfer is known as convection. See, the main point in conduction में क्या होता है, पहले एक पॉइंट ही गर्म होता है और धीरे धीरे पीछे पीछे को हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट आपकी ट्रांसफ़र होती है. बट इन कन्वेक्शन जो आपकी फ्रेम के नज़दीक में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फर्स्ट दे गेट हॉट, ओके, वो गर्म होते हैं. एंड देन दे राइजेस अप. जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर को जाते हैं और जो कोल्ड वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे को आते हैं. एंड देन कंप्लीट साइकिल ये चलते रहता है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए. आप कभी भी पानी को गर्म करते हुए देखना तो उसमें बबल्स में कुछ पानी की बूंदें ऊपर आ रही होंगी और नीचे जाते हुए तो आपको दिखेगा. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज कंडक्शन. कंडक्टर, the materials which allow heat to pass through them, that are called conductor. तो जो मटेरियल्स आपके अपने अंदर से अपने उसमें से आप हीट को जाने देता है, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स. द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. ओके, दे अलाउ द टेम्परेचर, दे अलाउ द हीट टू ट्रांसफर pass through them, so they are called conductors. And the insulators are the material which do not allow heat to pass through them, is called insulators. Like plastic and wood, they are insulators, they do not allow heat to transfer to pass through them. Okay, and the next point in this chapter is land breeze. Land breeze means आपकी गर्मियों में land breeze means the cool air from the land moves towards the sea, this is called land breeze. जब ये नाइट में होता है, यानी कि जो लैंड ब्रीज होती है, यानी कि जो लैंड की हवा होती है वो कहाँ जाती है, रात में. आपने कभी भी देखा होगा जो मिट्टी होती है, जो लैंड में जो हवा होती है वो शाम के टाइम में जल्दी ठंडी हो जाती है, बट जो सी में जो पानी होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता. तो जो लैंड जो सी से जो वाटर मॉलिक्यूल्स या जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होके क्या करते हैं, वो ऊपर उड़ जाते हैं और उस साइकिल को पूरा करने के लिए या वो लैंड की तरफ आ जाते हैं. और लैंड से जो कूल एयर होती है वो कहाँ जाती है, सी की उसमें. ओके, सो जब व्हेन कूल एयर कम फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, so this is called land breeze, and this land breeze it happen at night. So land breeze is the cool air from the land moves towards the sea, this is called land breeze. Next is sea breeze, the cool air from, here we only talk about firstly cool air कि मतलब एक पॉइंट को लेके चलना है कि कूल एयर कहाँ जा रही है और कहाँ से कहाँ जा रही है. जाती तो दोनों है, हॉट एयर कूल एयर, बट एक वन पॉइंट को लेके हम माइंड में अपना रखेंगे. लाइक लैंड ब्रीज में क्या होगा, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. एंड दिस लैंड ब्रीज इट हैपन एट नाइट. in the question they ask when the land breeze it happen at night. And sea breeze, the cool air from the sea moves towards the land. जब sea breeze कब होता है, जो cool air होती है sea से moves करती है land में, this is called land breeze. And this is happen at daytime. How?
डे टाइम में क्या होता है, आपकी जो लैंड की जो एयर होती है वो गर्म होकर ऊपर चले जाती है, तो जो एयर होती है जब जैसे ही वो हॉट होती है वो ऊपर राइज अप कर जाती है, और जो ठंडी एयर होती है हमेशा उस जगह को घेरने के लिए आ जाती है। तो जो सुबह का पानी या दिन के टाइम में, सुबह के टाइम पे पानी ठंडा होता है, तो जो उसकी सराउंडिंग्स एयर होती है वो भी ठंडी होती है, तो दैट एयर विल कम टू द लैंड साइड, सो दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। अगर सी से कूल एयर आ रही है दैट इज़ सी ब्रीज, अगर लैंड से कूल एयर आ रही है दैट इज़ लैंड ब्रीज, और लैंड ब्रीज it will happen at night and sea breeze it will happen at daytime. Understood? And the next point is radiation also. Radiation is also transfer or heat, means when the sun from the sun the heat comes to us by another process known as radiation. जो sun से हमें heat आती है ना convection से आती है, ना convection से, ना land breeze से, ना sea breeze से, it come from in the form of radiation. Okay, and in this chapter the last point is which type of clothes we should wear in summer and which type of clothes we should wear in winter, which type of colored. So in summer we should wear light colored clothes and in winter we should wear dark colored clothes. Light colored clothes because it reflects heat, ये एब्जॉर्ब नहीं करता हीट को, ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके हीट को बाहर ही रहने देता है। मतलब जो भी हीट हमारी बॉडी की तरफ या हमारे क्लोथ की तरफ आती है वो उसको एब्जॉर्ब ना करके उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि दूर भेज देता है अपने से। ओके, एंड इन विंटर जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, दैट्स वाई वी शुड वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। आपने देखा होगा हम ठंडियों में इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स। वाई? बिकॉज द वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड बेसिकली वुलन फैब्रिक में क्या होता है, ये एयर को, जो उसकी वुलन फैब्रिक के लेयर्स होते हैं, दे ट्रैप एयर बिटवीन देम, एंड एयर इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो द एयर बिटवीन द फैब्रिक डज नॉट अलाउ इट टू ट्रांसफर हीट। एक तो वुल भी क्या है आपका, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और अपने उससे हीट को आसपास जाने देगा नहीं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर हीट है उसको पकड़ के रखेगा, उसको बाहर नहीं जाने देगा। एंड सेकंड थिंग इज़ इसके जो वुलन फैब्रिक के बीच में जो लेयरिंग होती है वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और जो एयर ट्रैप इज़ ऑल्सो, जो एयर होती है दैट इज़ ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो दोनों ही मिलके क्या करते हैं, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देते, ठंडा नहीं होने देते हैं, आपकी बॉडी को गर्म रखते हैं। दैट्स वाई वी शुड वेयर वुलन क्लोथ्स in winter time. Understood? So I hope you understand this chapter and we will meet soon again in the next chapter.